بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ہم راکھی منہ کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کوہ سلیمان کے دامن میں واقع تھا۔ شہر سخی سرور سے فورٹ منرو جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارا گاؤں آتا تھا۔ گویا ہم میدانی علاقے سے نزدیک ترین پہاڑی علاقے کے مکین تھے۔ تبھی ہمارے گاؤں کے طالب علموں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ مڈل کے بعد وہ اگر میٹرک کرنا چاہتے تو شہر کے ہائی اسکول میں داخلہ لے لیتے تھے۔ تاہم یہ سہولت لڑکیوں کو حاصل نہ تھی۔ یہ 1960 سے چند سال پہلے کا دور تھا اور قبائلی علاقے کی لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند تھے، بلکہ یہ تو ناقابل تصور بات تھی۔ خوش قسمتی سے میرے ایک ماموں جو تعلیم کے شدائی تھے، پڑھنے کے لیے قریبی شہر ڈیرہ چلے گئے۔ ماموں نے میٹرک کر لیا تو مزید پڑھائی کا شوق بڑھا۔ تعلیم کی پیاس بجھانے کو وہ پہلے ملتان پھر لاہور چلے گئے۔ ان کے ایک ماموں لاہور میں سکون اختیار کر چکے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکری ملی اور پھر ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے اچھے عہدے تک جا پہنچے۔ ان کو شہر لاہور کی رونقیں بہت پسند تھیں۔ وہی مستقل سکون پذیر ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بھی اسی شہر سے تعلیم دلوائی۔ تعلیم کی خاطر جب میرے ماموں نے اپنے ماموں کے گھر لاہور میں قیام کیا تو جی لگا کر پڑھا، یہاں تک کہ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ یوں ایک بارانی علاقے کا قبائلی لڑکا لاہور میں آفیسر کی پوسٹ تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، بندہ لگن سے محنت کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علاقے کی کل آبادی قبائل پر مشتمل تھی اور اکثریت کے گھر پہاڑوں کی کوہ کے اندر بنے ہوئے تھے۔ یہ قدیم قبائل کے مسکن تھے، سو ان کی ریت و روایات بھی صدیوں پرانی تھی۔ مرد سفر تجارت کرتے اور بڑے شہروں کو آتے جاتے رہتے، لیکن عورتیں اپنے علاقے سے باہر نہ جاتی تھیں۔ رواج سخت تھے۔ عدالت کا نظام بھی قبائلیوں کا اپنا ہی رائج تھا۔ حتیٰ کہ انگریزوں کی راجدھانی بھی اپنے فیصلے خود کرتے اور جرگہ سسٹم رائج تھا۔ انگریزوں کا قانون یہ نہیں مانتے تھے۔ والد صاحب کا تعلق بھی ایک ایسے ہی قبیلے سے تھا، تاہم سخی شہر قریب ہونے کی وجہ سے وہ میٹرک تک پڑھ لکھ گئے۔ راکھی منہ گاؤں میں جب پہلا ہائی اسکول کھلا، کسی مقامی استاد کی ضرورت پڑ گئی۔ والد صاحب واحد شخص تھے جو میٹرک پاس تھے اور شہر سے ٹیچر ٹریننگ کی تھی۔ انہیں اسکول میں سرکاری استاد کی ملازمت مل گئی۔ ایک استاد ہونے کے ناطے ان کو کبھی لاہور محکمہ تعلیم جانا پڑتا تھا، جہاں ان کے سالے کا گھر تھا۔ وہ انہی کے گھر قیام کرتے تھے۔ ماموں ان کی آؤ بھگت اور بہت خاطر تواضع کرتے۔ اکثر کہتے، جمال خان، اگر تم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو ان کو میرے پاس لاہور بھیج دو۔ میرا بھائی منصور خان مجھ سے 2 برس چھوٹا تھا۔ والد صاحب تڑکے اسکول جاتے ہوئے اس کو بھی ساتھ لے جاتے۔ اسکول سے بھائی جب قاعدہ لاتا، اس میں رنگین تصویریں دیکھ کر دل کرتا کہ میں بھی پڑھوں۔ جب وہ اپنا بستہ رکھتا، میں اس کو کھول لیتی اور کتابیں نکال کر رنگین تصویریں دیکھتی۔ ایک روز ماموں لاہور آئے۔ امی بیمار تھیں۔ وہ ان سے ملنے آئے تھے۔ مجھے منصور بھائی کے قاعدے کو گھورتے پایا تو بولے، کیا دیکھ رہی ہو؟ تصویریں دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو بھائی کی کتاب میں چھپی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگے، کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم بھی اسکول جاؤ اور یہ کتابیں پڑھو؟ ہاں ماموں، بہت دل چاہتا ہے، لیکن میں نہیں پڑھ سکتی۔ میں تو چھپ کر منصور بھائی کی کتاب کو دیکھتی ہوں کہ بھائی اور بابا جان مجھے کتاب پکڑے دیکھ کر ناراض نہ ہو جائیں۔ کیا تم میرے ساتھ لاہور چلو گی؟ ہاں ماما، کیوں نہیں؟ اگر آپ لے جائیں گے تو ضرور چلوں گی، لیکن بابا جان کب جانے کی اجازت دیں گے؟ میں خود ان سے اجازت لوں گا، انہوں نے جواب دیا۔ جب بابا جان اسکول پڑھا کر لوٹے تو ماموں نے ان سے پوچھا، کیا میں بخت بی بی کو لاہور لے جا سکتا ہوں؟ میں اسے وہاں پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں تو لڑکیوں کا نہ کوئی اسکول ہے اور نہ بچوں کو پڑھانے کا رواج ہے۔ والد خود استاد تھے، شہر سے میٹرک کیا تھا اور لاہور بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ قدیم قبائلی ضرور تھے، لیکن ننیال شہری ہونے کے سبب وہ بہت زیادہ قدامت پسند نہ رہے تھے۔ کہنے لگے، مجھے تو اعتراض نہیں، لیکن میرے بھائی بند اور رشتہ دار اس بات پہ راضی نہ ہوں گے۔ میرا ناطہ بند کر دیں گے، سب سے ملنا بند کر دیں گے۔ ان کو مت بتانا کہ لڑکی کو لاہور میں پڑھا رہے ہو، یہی کہنا کہ ماموں کے گھر رہنے گئی ہے۔ یہ بات آخر کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟
जब तक छुपी रह सकेगी तब तक बख्त बीबी को मेरे पास रहने दो, वरना ले आना। कर्ज बहुत हीलो हुज्जत के बाद मामू मुझे लाहौर अपने साथ ले आए। अम्मी की बीमारी का पता न चल रहा था, वो इनको भी साथ लाए थे ताकि लाहौर के किसी बड़े अस्पताल में इनके तबी टेस्ट और इलाज करवा सकें। अम्मी ने एक माह मामू के घर क़याम किया और जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो मामू खुद इनको वापस गाँव छोड़ गए, मगर मुझे अपने ही पास रखा और अपनी बेटी के साथ स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मेरी हम उम्र भी थी। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाती, इकट्ठे खाना खाती, खेलती, एक ही कमरे में सोती। मुनज़्ज़ा का एक भाई था मगर कोई बहन न थी। मेरे आने से वो बहुत खुश रहने लगी। मोमानी जो लाहौर से ही थी मुझसे खुश रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी, पढ़ी लिखी थी, बिल्कुल तंग नज़र ना थी। मामू का घर तो गोया मेरे लिए जन्नत था। कहाँ एक पहाड़ी गांव की ज़िंदगी और कहाँ ये पुररौनक शहर। मैं तो इस शहर की खूबसूरती को देखकर ही शुश्तर रह गई थी। बाबा जान ने कभी अपने गांव से शहर मुंतकिल होने का न सोचा, जबकि मामू जान ने तो इनको कायल करने की बहुत कोशिश की। वो कायल ना हुए, कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ, प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। उन्होंने कहा कि तो बारानी फसलों से इतनी आमदनी हो जाती कि साल भर चैन की बंसी बजाता हूँ। नौकरी मिल गई है, इज्जत के साथ सरकारी वजीफ़ा अलग है। बड़े शहरों में सिवाय हंगामे के क्या रखा है? सुकून तो यहाँ पहाड़ों में ही मिलता है। मुझको वालिद की ये बातें बिल्कुल अच्छी न लगती थी। जाने वो कैसा दिमाग रखते थे कि लाहौर जैसा शहर भी इनको ना लभा सका। मैं तो उस गुले गुलजार जगह को देखकर झूम उठी थी। इतनी रौनक, इतनी दौलत, इतना हुस्न कि जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि लाहौर इतना खूबसूरत होगा। मैं एक सादा सी लड़की इतना कैसे सोच सकती थी जो कभी अपने इलाके से बाहर ही ना गई थी। फिर एक दिन मुझे ये ख्याल आया। मेरे मामू के घर का माहौल बहुत पाकीज़ा था। मुझे और मुनज़्ज़ा को कहीं अकेले आने जाने की इजाज़त ना थी। मुनज़्ज़ा एक कम गो और शर्मीली लड़की थी, घर वालों के सिवा किसी से बात नहीं करती थी। जब मैंने 8वीं पास कर ली तो मेरी वालिदा ने इसरार किया कि अब बख्त बीबी को हमारे पास भेज दो। मामू ने मुझसे पूछा, मैं रोने लगी कि हरगिज़ ना जाऊंगी, मुनज़्ज़ा के साथ पढ़ूंगी। वालिदा और वालिद आकर मिल जाते मगर मैं इनके साथ जाने का नाम न लेती। मामू और मोमानी इनको समझा बुझाकर भेज देते कि मैट्रिक तक पढ़ने दो, इसके बाद हम इसको ले आएंगे। मंसूर भाई ने मैट्रिक कर लिया तो मैंने चाहा कि वो भी लाहौर आ जाएं और कॉलेज में दाखिला ले लें, लेकिन वालिदा इसको बहुत चाहती थी। वो तो मुझे मामू के हवाले करके अब पछता रही थी कि मैं वापस इस माहौल में जाना ही ना चाहती थी कि जहाँ न बिजली थी और न सड़कें। लोग जोहड़ों से बदबूदार पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर थे, वरना बारिश का जमाशुदा पानी जानवरों के साथ इंसान भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ कोई अस्पताल था ना शफा खाना। कोई बीमार हो जाता तो पहाड़ों से उतरते और शहर तक पहुँचने तक मरीज़ का दम निकल जाता था। जब से मैंने लाहौर आकर शहरी ज़िंदगी को देखा था, पहाड़ अब मुझे हैबतनाक दियो जैसे लगते थे। यूँ तो मेरी खुशबख्ती थी कि मेरे वालिद तालीम की अहमियत को समझ चुके थे और उन्होंने मामू के घर रहने की इजाज़त दी थी, वरना कहाँ मुमकिन था कि 1955 के ज़माने में कोहे सुलेमान की बासी किताब हाथ में लेती। लाहौर आकर कॉलेज में पढ़ना तो मेरे भाई मंसूर खान का भी ख्वाब था, लेकिन एक मसला ये भी था कि मुनज़्ज़ा बड़ी हो गई थी। मोमानी के वालिदैन बेटी को कहते कि घर में तुम्हारी जवान लड़की है, तुमने शौहर की भांजी रख ली है और अब बेटा भी बड़ा हो गया है, तो शौहर की भांजी को बुलाकर घर रखना ठीक नहीं है, इसको वापस इसके वालिदैन के पास भेज दो। जब मैंने ये सुना दुआ करने लगी, या अल्लाह जल्द मुनज़्ज़ा की शादी हो जाए ताकि वो अपने घर चली जाए और फिर मामू मोमानी मेरे भाई मंसूर को अपने घर बुला लें। अभी तक मुनज़्ज़ा का कहीं से रिश्ता नहीं आया था कि इसकी शादी का दूर दूर तक कोई इम्कान न था। तब मेरे जहन में ख्याल आया, हमारे पड़ोस में जो फैमिली रहती थी, इनका लड़का मेरे मामूज़ाद ताहिर का हम उम्र था। कभी कभी ताहिर से मिलने साथ आया करता तो ताहिर इसको ड्राइंग रूम में बिठाता। मैंने लड़का एक बार देखा था, साथ खूबसूरत था। वो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और ये खुशहाल लोग थे। मोमानी का इनके घर कभी कभार आना जाना होता था। ताहम साद की बहन अर्शिया जो हमारी हम उम्र थी, हमारे पास आ जाती थी। इसकी मुनज़्ज़ा और मुझसे दोस्ती हो गई थी।
एक दिन वो आई तो मैंने कहा कि तुम्हारा भाई इंजीनियर बनने वाला है, मुनज़्ज़ा इसको पसंद करती है, तुम क्यों नहीं इसको अपनी भाभी बना लेती। वो बोली, जिस लड़की को मेरा भाई साथ पसंद करेगा हम इसी से इसकी शादी करेंगे, क्योंकि वो हमारी पसंद से शादी नहीं करेगा। इसने अम्मी को कह दिया है। क्या इसने कोई लड़की पसंद कर ली है? नहीं, अभी तक तो नहीं की। तुम मुनज़्ज़ा की बात इसके कान में डालो, हो सकता है मेरी कज़न इसको पसंद आ जाए। पहले वो लड़की को देखेगा फिर पसंद करेगा। तुम मुनज़्ज़ा की तस्वीर इसको दिखाओ, फिर किसी बहाने देख भी लेगा। ताहिर भाई के पास तो आता ही है, लेकिन मुनज़्ज़ा तो इसके सामने नहीं जाती। अरे भाई, स्कूल आते जाते देख लेगा, तुम पहले तस्वीर तो दिखाओ। वाकई मुनज़्ज़ा तुम्हारे भाई को पसंद करती है। मैंने अपनी तरफ से झूठ बोला, हालांकि बेचारी मुनज़्ज़ा को तो इल्म भी ना था। अपनी कज़न की एक तस्वीर ढूंढकर अर्शिया को दे दी, ताकीद की कि तस्वीर दिखा के मुझे वापस ला देना। हाँ, मुनज़्ज़ा को इस बात का बिल्कुल भी पता न चले। वो लड़की सीधी सादी थी, मेरी बातों में आ गई, क्योंकि ख़ुद भी मुनज़्ज़ा को पसंद करती थी। इसे तस्वीर ले जाकर अपने भाई को दिखाई और कहा, यह लड़की तुमको पसंद करती है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी लड़की है। ताहिर की बहन तुम्हें अच्छी लगे तो अम्मी से कहो इसके साथ तुम्हारा रिश्ता कर दें। पहले मुझे इम्तिहान तो दे लेने दो, अभी से मेरी शादी की पड़ गई है, साथ ने जवाब दिया। अर्शिया ने तस्वीर अपने पास रख ली, मुझको वापस न की। जब मैं मांगती वो आजकल कर देती। इस तरह वक्त गुजरता गया। हमारे मैट्रिक के इम्तिहान हो गए और मुझे बिल आखिर अपने गांव लौट आना पड़ा। भाई ने भी मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया था, इसके अब कॉलेज जाने की बारी थी। अर्शिया के भाई के इम्तिहान ख़त्म हो गए और जल्द इसकी मुलाजमत इस्लामाबाद में हो गई। वो सारी फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। वहाँ साद की शादी की बात चली। अर्शिया ने माँ को मुनज़्ज़ा के बारे में कहा। सास से पूछा क्या, वो तस्वीर देख चुका था, दोबारा भी देखी और माँ से कहा इसी लड़की से मेरी शादी कर दें। ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं, देखे भाले लोग हैं। मुनज़्ज़ा बहुत अच्छी लड़की है और इनका माहौल बहुत पाकीज़ा है। आंटी ने साद के वालिद को राज़ी कर लिया और बीवी के हमरा लाहौर मामू के पास रिश्ता तलब करने आ गए। मामू ने साद के वालिद से कहा कि बेशक आप अच्छे लोग हैं और हमारे पुराने पड़ोसी हैं, मगर मैं आपको बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। हम बरादरी से बाहर लड़की का रिश्ता नहीं करते। आप इनकार ना करें। लड़के के बाप ने इसरार किया। आखिर क्यों इनकार ना करूं? आपकी बेटी हमारे बेटे को पसंद करती है। देखिए, इसने अपनी तस्वीर भी साद को दी है। अंकल ने मुनज़्ज़ा की वो तस्वीर जेब से निकाल कर मामू को दी। तस्वीर देखकर मामू का रंग बदल गया। बेटी का फ़ोटो उठाकर जेब में रख लिया। वो लोग चले गए। उन्होंने मुनज़्ज़ा को बुलाकर इसकी तस्वीर दिखाई और कहा, यह तस्वीर तुमने पड़ोसी के घर भिजवाई थी। वो हैरान रह गई, हैरत के मारे ज़ुबान गुंग हो गई, मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाल सकी। मुनज़्ज़ा की खामोशी से मामू ने यही समझा कि शायद तस्वीर इसने साद को दी है। वो लाख रोशन ख्याल सही इस मामले में अभी तक कदामत पसंद ही थे। उन्होंने वालिद साहब को बुलाया और कहा, मैं मुनज़्ज़ा का रिश्ता आपके बेटे से करने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर आपको मंजूर हो तो मंसूर खान यहाँ लाहौर आकर मेरे पास रहेगा। मैं इसे लाहौर में पढ़ाऊँगा। इसकी मुनज़्ज़ा से शादी होगी। शादी के बाद मेरी बेटी लाहौर में रहेगी। मंसूर खान इसको गांव ना ले जाएगा। वो वहाँ ना रह सकेगी। इस सख्त ज़िंदगी के वो आदी नहीं है। अलबत्ता यहाँ रहकर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी। वो तालीम भी हासिल कर लेगा और मैं इसकी अच्छी नौकरी भी लाहौर में लगवा दूँगा। कुछ सोचकर वालिद ने मामू की शर्त मान ली। मंसूर खान की शादी मुनज़्ज़ा से हो गई। इसका लाहौर जाकर तालीम हासिल करने का ख्वाब भी पूरा हो गया। मुमानी मुझे अच्छी तरह देख परख चुकी थी। मैं 10 बरस इनके घर रही थी। उन्होंने मामू को तजवीज़ दी, क्यों ना हम ताहिर के लिए मंसूर की बहन का रिश्ता ले लें। दोनों बहन भाई लाहौर में रहेंगे तो आपा और इनके शौहर भी यहाँ आ जाएंगे। दरअसल मुमानी ने अरसा कब मुझे बहू बनाने का सोच लिया था। वो मुझे पसंद करती थी। जब मामू ने मेरा रिश्ता ताहिर के लिए बाबा जान से मांगा तो मुनज़्ज़ा बहुत खुश हुई। इसने मंसूर को भी राज़ी किया। वो अपने वालिदैन को भी राज़ी करे। मंसूर भाई ने गांव जाकर वालिदैन की मिन्नत की, बल्कि इस चचा की मिन्नत समाजत की जो मेरा रिश्ता मामू की तरफ ना होने दे रहे थे। इस तरह मेरा भी लाहौर में रहने का ख्वाब पूरा हो गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि मुनज़्ज़ा मेरी और मैं इसकी भाभी बनी थी। हमारा साथ ना छूटा था। ताहम आज तक मुनज़्ज़ा को ये इल्म नहीं है कि महज अपने भाई को लाहौर लाने की खातिर इसकी तस्वीर मैंने अर्शिया को देकर इस बेचारी को वालिदैन की निगाहों में मुजरिम बना दिया था। इस बात का पछतावा आज भी है, लेकिन वो नादानी वाली उम्र थी। इसे नुकसान पहुंचाने की नीयत हरगिज़ न थी। इस पर अपने रब से
अभी भी माफ़ी की दरख्वास्त गुजार हूँ। सच शुक्र है कि अर्शिया ने यह राज न खोला, वरना मुनज़्ज़ा के दिल में मेरे लिए नफ़रत के जज्बात जन्म ले सकते थे। नादान उम्र में लड़कियों से बिलाशुबा ऐसी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरी गलती का नतीजा अच्छा निकला, वरना मैं ख़ुद को कभी माफ़ न कर सकती।